Next question is, given the diversities among the tribal communities in India, in which specific context should they be considered as a single category? This is also a 10 marker question. So this question is based on tribal community. Last year also UPSC asked question on tribal knowledge system. I think in 2017 they have asked question that uh, why tribes are considered as a scheduled caste. ऐसे टाइप में एक क्वेश्चन आया था. So again, this year also UPSC has asked question on tribal issues. So उसमें क्या है कि given the diversities among the tribal communities in India, in which specific context should they be considered as a single category? So you must be familiar with the tribal communities of India. आपको पता होगा कि tribal community is the most diverse community of Indian society. सबसे ज्यादा diversity of lifestyle, of culture आपको tribal society में ही देखने को मिलेगी. So on one hand, tribal communities represent tremendous diversity, but there are certain common factors which define tribal as a tribal society. Okay, so in first part, what you can write, you can talk about the diversity among the tribal societies. A very straightforward question. First half में आप लोग क्या लिखोगे कि elements of diversity among the tribals in India. इसको आपको highlight करना है. And in second part आपको ऐसे factors लिखने हैं कि which make the tribal society as a single group. ठीक है. In introduction part, you can talk about the tribal population of India and their concentration in different pockets of India. आप एक tribal population से related कोई 2-3 statement आप introduction में लिख सकते हो. So now in main body, first half would be dedicated to diversity among the tribals in India. So आपको diversity के लिए points लिखने होंगे यहाँ पे. So first point I have mentioned is regional diversity. आपको पता होगा कि tribals are distributed in different parts of India. सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट में बहुत ज्यादा ट्राइब्स आपको देखने को मिलेगी. ट्राइब्स लाइक मुंडा, संथाल, गोंड. हिमालयन स्टेट्स में ट्राइब्स है बहुत ज्यादा इन मोस्टली उत्तराखंड रीजन, हिमाचल प्रदेश रीजन, सिक्किम रीजन, लेपाचा, भूतिया, गुज्जर जैसी ट्राइब्स है. देन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तो पूरा ट्राइबल एरिया है. वहां पे इन ऑलमोस्ट एवरी स्टेट यू विल फाइंड न्यूमरस ट्राइब्स. ठीक है. ट्राइब्स लाइक नागा, गारो, कुकी, चकमा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. देन सदर्न स्टेट में तोड़ा, काडर, पनियन, ऐसे एग्जाम्पल्स आप लोग लिख सकते हो. ठीक है. सो रीजनल डाइवर्सिटी, ट्राइब्स में क्या है कि रीजनल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है. देन अगेन रेशियल डिफरेंसेस. सो रेशियल डाइवर्सिटी भी है इन केस ऑफ ट्राइब्स ऑफ इंडिया. आपको इंडियन ट्राइब्स में रेशियल डिफरेंसेस या रेशियल डाइवर्सिटी भी देखने को मिलेगी कि if we talk about the tribes belong to central India, so mostly they belong to proto-australite race. North east के जो tribes है, they belong to mongolite race. And the tribes which belongs to southern Indian hilly region as well as the Andaman Nicobar region, so they belong to the negrito race. ठीक है. So racial diversity भी बहुत ज्यादा है in case of Indian tribes. Then again differences of food habits, डाइवर्सिटी ऑफ फूड हैबिट्स. अलग अलग रीजन के ट्राइब्स की फूड हैबिट्स अलग अलग है. ड्रेसिंग पैटर्न में डाइवर्सिटी है. उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है, उनका जो कॉस्ट्यूम है, उनकी जो ज्वेलरी वो लोग यूज करते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी. मीन्स इन टर्म्स ऑफ कल्चर के सेंस में आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी. उनके जो डांसेस है, म्यूजिक, वो फेस्टिवल्स विच दे सेलिब्रेट, इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी. ठीक है. सो ये डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट में आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं. आप इनको थोड़ा और इलेबोरेट कर सकते हो. Despite
having such tremendous diversity, still still these tribes represent a single entity, जो ट्राइबल सोसाइटी को ट्राइबल सोसाइटी बनाता है. तो वो कौन से फैक्टर्स है कि what sort of commonality which you can observe in case of tribes in India, वो अभी आपको लिखना है. हम लोग ट्राइबल सोसाइटी को ट्राइबल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ देयर कॉमन लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ देयर कॉमन लिविंग पैटर्न. मोस्टली all the tribes of India, they live a primitive life. We refer them as a primitive society. ठीक है, कि वहां पे जहाँ पे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट उतना ज्यादा नहीं है, एग्रीकल्चर भी है तो वो भी अभी सबसिस्टेंस लेवल पे ही एग्रीकल्चर है, कि सरप्लस इकोनॉमी नहीं है, मार्केट इकोनॉमी नहीं है वहां पे. मोस्टली उनका जो लाइवलीहुड है इट इज एसोसिएटेड विथ फॉरेस्ट. जूम कल्टीवेशन बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है इन डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज. ठीक है, सो दीज आर द कॉमन फैक्टर्स अमंग द ट्राइबल पीपल. अगेन डिविजन ऑफ लेबर विद इन सोसाइटी इज वेरी मच सिंपल. बहुत ज्यादा क्लास बेस्ड सोसाइटी नहीं है, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन नहीं है ग्रुप्स का, ज्यादा ऑक्यूपेशंस की डाइवर्सिटी नहीं है. अ वेरी सिंपलिस्टिक इकोनॉमी विच इज डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, ऑन द कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, देन प्रिमिटिव एग्रीकल्चर. ठीक है, सो इकोनॉमी बहुत ज्यादा एक सिंपल इकोनॉमी है. सो बिकॉज ऑफ द सिंपल इकोनॉमी वहां पे ज्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं है. आपको बहुत ज्यादा हायरार्की वहां पे देखने को नहीं मिलेगी. मींस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी बहुत सिंपल लेवल का है. ठीक है, एंड मोस्टली इन ट्राइबल सोसाइटी यू विल नॉट फाइंड द कास्ट स्ट्रक्चर्स. ठीक है, अगेन जेंडर बेस्ड हायरार्की भी वहां पे उतनी स्ट्रिंजेंट नहीं है. दैट्स व्हाई वी रेफर ट्राइबल सोसाइटी इज मोर इगैलिटेरियन सोसाइटी कंपेयर टू द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, बिकॉज वहां पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उतना ज्यादा नहीं है. किनशिप बेस्ड सोसाइटी है, कि जहाँ पे जो फैमिली रिलेशनशिप होते हैं, एंसेस्टर्स के साथ रिलेशनशिप, उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. सो किनशिप बेस्ड सोसाइटी. अगेन ये ऐसे कुछ फीचर्स है कि जो एक कॉमनैलिटी डिफाइन करते हैं ऑफ ट्राइबल सोसाइटी. बट अलॉन्ग विद दैट, व्हाट इज द कॉमनैलिटी in case of different tribes of India? They share common problems. So you can highlight their common problems here. कि almost all the tribes in India, you will find lower literacy rate, the literacy rate which is below national average. Again, the proportion of malnutrition in case of tribal society is very high. The proportion of people suffering from anemia, stunting, wasting is very much high in case of tribal society. They share common problems like lack of having basic facilities like schools, basic health facilities. Mostly tribal community में आपको high maternal mortality rate, high infant mortality rate देखने को मिलेगा. Again, land and forest alienation and a forceful displacement. These are also common problems shared by all the tribal communities of India. Because जैसे जैसे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बढ़ेगी, सो ऑब्वियसली जो फॉरेस्ट एरियाज है, सो उन पे इंक्रोचमेंट हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्राइबल लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. इन पोस्ट ग्लोबलाइजेशन टाइम ये जो डिस्प्लेसमेंट का इशू है वो बहुत ज्यादा सिवियर हो गया है, बिकॉज ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं, फिर हमारे यहाँ पे माइनिंग सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है. सो बिकॉज ऑफ दैट ट्राइबल लोगों का बहुत ज्यादा फोर्सफुली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. सो दिस इज ऑल्सो कॉमन प्रॉब्लम शेयर बाय ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया. Indebtedness, backwardness, these are the common points. Again, as there is growing degradation of environment, degradation of forest, कि forest का अगर degradation होगा तो obviously their life is very much dependent on forest for livelihood, for their culture. Their belief system is associated with forest. So obviously there is huge cultural loss for tribal community. And this is also a common problem shared by all the tribal communities of India. Cultural loss, ये भी हम लोग लिख सकते हैं. In case of religion also, कि एक though many tribes have actually now become a part of Hinduism or has now become a part of Christianity, but still there is one common factor which hold the tribal society together. वो है animism, कि उनकी जो बिलीफ सिस्टम है
इट इज मोर एसोसिएटेड विथ सोल वर्शिप और फॉरेस्ट वर्शिप। ठीक है, सो ये हम लोग यहाँ पे हमको दो चीजें हाईलाइट करनी है, एक तो पॉइंट्स ऑफ डाइवर्सिटी एंड पॉइंट्स ऑफ कॉमनैलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज द salience of sect in Indian society vis-a-vis caste, region, and religion. This is a 15 marker question. So you must be knowing this fact that if a question is asked for 15 marks, generally the word limit is 250 words. So यहाँ पे what they have asked to compare sect with diverse categories like caste, region, and religion. So what is the simplest way to introduce this answer? इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेफिनेशन ऑफ सेक्ट। डेफिनेशन ऑफ सेक्ट के साथ हम लोग इस आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। दैट इज सेक्ट इज अ रिलीजियस ग्रुप दैट रिप्रेजेंट द पीपल हु डिसेंड फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिलीजन। इट इज मार्क्ड बाय अ डिजायर टू डिसएसोसिएट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। सेक्ट्स जनरली ट्राई टू अटेम्प्ट टू रैशनलाइज द ओरिजिनल रिलीजन। जनरली सेक्ट्स का जो डेवलपमेंट होता है, सेक्ट्स इमर्ज एज अ रिएक्शन टू एग्जिस्टिंग रिलीजन, कि एग्जिस्टिंग रिलीजन में अगर कुछ एक्सप्लोरेटिव प्रैक्टिसेस है या ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस है या डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है विच यू आर नॉट एग्रीड टू, सो पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग दिस प्रैक्टिसेस। एंड अगर किसी बंदे ने उसको क्वेश्चन किया तो उसका एक कल्ट डेवलप होता है, एंड उस कल्ट का जब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता है तो उसको हम लोग सेक्ट बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द सेक्ट्स इन इंडिया आर, आपको भक्ति मूवमेंट से बहुत ज्यादा सेक्ट्स इमर्ज होते देखने को मिलते हैं। सो भक्ति मूवमेंट इमर्ज्ड एज अ रिएक्शन टू ट्रेडिशनल रिचुअलिस्टिक ब्राह्मणिकल रिलीजन। ठीक है, सो इट वाज अ रिएक्शन, एंड उसी में से आपको आज बहुत सारे सेक्ट्स देखने को मिलते हैं। Even in case of Christianity, Protestantism is a sect which emerged from Christianity, कि चर्च का जो एक आर्बिटरीनेस था या बहुत ज्यादा करप्ट प्रैक्टिसेस थी चर्च में, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइबल था, तो उसको एक रिएक्शन की तरह प्रोटेस्टेंटिज्म का राइज हुआ। इन मुस्लिम कम्युनिटी यू विल फाइंड सेक्ट्स लाइक सुन्नी, शिया, दाऊदी बोहरा से एग्जाम्पल्स हम लोग सेक्ट्स के लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन इट्स एक उन्होंने एक स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछा है कि कंपेयर सेक्ट्स विद रीजन, रिलीजन एंड कास्ट, तो उसी हिसाब से हम लोग को ये आंसर लिखना है। फर्स्ट वी विल राइट द कंपैरिजन बिटवीन सेक्ट एंड रिलीजन। सो सेक्ट एंड रिलीजन में कंपैरिजन क्या हो सकती है? सो हियर यू कैन एक्सप्लोर द पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी एज वेल एज डिफरेंसेस। सो सिमिलैरिटी क्या है इसमें? सेक्ट एंड रिलीजन में सिमिलैरिटी क्या है? sorry, sect, religion is an umbrella term whereas sect is a just part of it। कि अगर हम लोग डिफरेंसेस की बात करेंगे तो रिलीजन एक अम्ब्रेला टर्म है, रिलीजन इज अ ब्रॉडर कम्युनिटी, एंड विद इन अ रिलीजियस कम्युनिटी सेक्ट इज अ स्मॉल ग्रुप। Sect is not a part which is different from any religion, but it's a small community within that religious group। ठीक है, सो एक सेक्ट एक छोटी रिलीजियस कम्युनिटी है विच इज अ पार्ट ऑफ बिगर रिलीजियस कम्युनिटी और द रिलीजियस डिनोमिनेशन। ठीक है, सो देयर कैन बी मल्टीपल सेक्ट विद इन द सेम रिलीजन। आप हिंदुइज्म में देखिए कितने सारे सेक्ट्स हैं, लाइक वैष्णविज्म, शैविज्म, शक्ति सेक्ट, देन सो मेनी भक्ति सेक्ट्स लाइक लिंगायत, देन रविदास पंथ, कबीर पंथ। सो दीज आर द सेक्ट्स within the broader category of Hinduism. So Hinduism is a religion, but these are sects. So this is the basic difference between sect and religion. Here you can also add a point like almost all major religions of the world have experienced formation of sects. कि किसी भी रिलीजन की जो एक फाउंडेशनल आइडियोलॉजी होती है या बिलीफ सिस्टम होती है उसको कहीं ना कहीं चैलेंज किया जाता है, एंड उसी से सेक्ट्स इमर्ज होते हैं। सो इन ऑलमोस्ट एवरी रिलीजन आपको सेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द सेक्ट्स एक्चुअली इमर्ज्ड एज अ रिएक्शन टू द इरेशनल प्रैक्टिसेस ऑफ एग्जिस्टिंग रिलीजन। सो यहाँ पे आपको सारे ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं कि जहाँ पे आप लोग कंपैरिजन दिखा सकते हो बिटवीन सेक्ट एंड रिलीजन। विद इन द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन वेरियस सेक्ट्स एंड कल्ट्स कैन हैव एनिमोसिटी। कि
अलग अलग जो सेक्ट्स है विद इन द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, उनमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलते हैं बहुत बार। एक आपने हमेशा सुना होगा कि जो हमारे यहाँ पे कुंभ मेला ऑर्गेनाइज होता है, सो कुंभ मेला में हमेशा जो शैवाइट के फॉलोअर्स है या शैविज्म के फॉलोअर्स है या वैष्णविज्म के फॉलोअर्स है, उनमें एक फाइट देखने को मिलते हैं, एक होस्टाइल एटीट्यूड देखने को मिलता है फॉर ईच अदर। ठीक है, सो विद इन अ सेम रिलीजियस कम्युनिटी डिफरेंट सेक्ट्स में एनिमोसिटी भी हो सकती है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। Again, next point of difference is religion can have membership from all state of society, but sects generally have membership from particular social strata. ये बहुत कॉमनली आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि इन केस ऑफ रिलीजन, people belonging to different caste, class, different regions, they are the follower of a common religion. बहुत बार ये जो मेंबरशिप होती है ये अक्रॉस रीजन्स होती है, ठीक है। बट इन केस ऑफ सेक्ट, सेक्ट का जो मेंबरशिप होता है वो पर्टिकुलर सोशल स्ट्राटा में ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप रविदास पंथ का देखिए कि रविदास पंथ के जो फॉलोअर्स है दे आर मोस्टली फ्रॉम द लोअर कास्ट। इन केस ऑफ लिंगायत सेक्ट्स, जो कुछ सम हायर कास्ट इन कर्नाटक, दे आर द फॉलोअर्स ऑफ लिंगायत सेक्ट्स। सो एक पर्टिकुलर सोशल स्टेटा के ही फॉलोअर्स सेक्ट में ज्यादा देखने को मिलते हैं, बट रिलीजन की एक हमेशा ब्रॉडर फॉलोअरशिप होती है। एक न्यू पैटर्न कंटेम्प्रेरी टाइम में आपने देखा होगा कि इन प्रेजेंट टाइम मेनी सेक्ट्स इन इंडिया आर एक्चुअली डिमांडिंग द स्टेटस ऑफ सेपरेट रिलीजन। इसके आप लोग एग्जांपल भी लिख सकते हो, लाइक रिसेंटली देयर वाज न्यूज ऑफ तमिलनाडु की अय्या सेक्ट जो है वहां पे, सो दैट सेक्ट, द फॉलोअर्स ऑफ दैट सेक्ट्स आर नाउ डिमांडिंग द सेपरेट रिलीजन स्टेटस। Even Lingayats in Karnataka, they are also demanding the status of separate religion. Ravidasiya sect, ठीक है। Now points of comparison of sects and caste. So how you will compare sects with caste? Both sects as well as caste have religious origin. ठीक है कि एक तो कॉमनली मतलब ये बहुत क्लियर है कि सेक्ट्स एक्चुअली इमर्ज फ्रॉम अ ब्रॉडर रिलीजन, though it come as a reaction, but it emerged from the original religious belief system, so it has religious origin. And in case of caste system का भी आपको पता होगा कि मोस्टली हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट है लाइक धर्मशास्त्र, लाइक पुराणास, दे एंडोर्स द कास्ट सिस्टम। एंड आपने वो भी सुना होगा कि फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ ब्रह्मा डिफरेंट वर्णास एक्चुअली इमर्ज एंड विच वेयर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कास्ट। सो बोथ सेक्ट एंड कास्ट बोथ हैव रिलीजियस ओरिजिन, ये हम लोग लिख सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्ट एंड कास्ट? द बेसिक डिफरेंस इज सेक्स जो है, सो सेक्स में लाइक कास्ट सिस्टम में क्या है कि कास्ट सिस्टम इज एक्चुअली बेस्ड ऑन फिक्स्ड हेरिडेटरी ऑक्यूपेशंस, कि जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब किया जाता है कि यू हैव टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन फॉर जनरेशन टू जनरेशन, कि आपको आपके सारे जनरेशन को यही काम करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ सेक्स देयर इज नो सच प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस हम लोग सेक्ट एंड कास्ट में देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग सेक्ट्स की बात करेंगे, जो सारे भक्ति मूवमेंट में जो सेक्ट भक्ति मूवमेंट्स में से जो सेक्ट्स इमर्ज हुए, दे वर एक्चुअली केम एज अ रिएक्शन टू रिचुअलिस्टिक कॉम्प्लिकेटेड ब्राह्मणिकल रिलीजन। आप जैनिज्म का एग्जांपल ले सकते हैं, आप बुद्धिज्म का एग्जांपल ले सकते हैं कि 600 BC में जो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का इमर्जेंस हुआ, सो इट वाज अ रिएक्शन टू ट्रेडिशनल ब्राह्मणिकल रिलीजन। ठीक है कि जो ट्रेडिशनल ब्राह्मणिकल रिलीजन था, कि जो लोअर सोशल स्टेटा थे सोसाइटी के, उनको एक अपवर्ड मोबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा था। अगेन आप देखिए कि जो पूरी भक्ति मूवमेंट है विच स्टार्टेड फ्रॉम 8th सेंचुरी एडी, तो सारी भक्ति मूवमेंट जो है वो इट इज अ रिएक्शन टू कास्ट सिस्टम, बिकॉज जो ट्रेडिशनल रिचुअलिस्टिक रिलीजन है, इट इट डिडंट प्रोवाइडेड द राइट टू वर्शिप टू द लोअर कास्ट पीपल,
They denied the right to worship to mostly people belonging to the Shudra caste or the Avarnas. ठीक है, so it came as a reaction. So ये भी एक हम लोग इंटरलिंकेजेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. अगेन एक और पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दो सेक्ट एंड कास्ट आर डिफरेंट कंसेप्ट, बट स्टिल यू विल फाइंड द ओवरलैपिंग बाउंड्रीज. कि एक पर्टिकुलर सेक्ट का जो फॉलोअर ग्रुप है, इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन कास्ट. कि किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोग किसी पर्टिकुलर सेक्ट को फॉलो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कबीरपंथीज, फॉर एग्जाम्पल लिंगायत, कि पर्टिकुलर कास्ट के लोग एक सेक्ट को फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, सो ओवरलैपिंग बाउंड्रीज ये भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं. Now comparison between sect and religion. See, this is a 15 marker question, so that's why you will need more fodder to expand the answer. So you will need at least 3 to 4 points for each topic. Ki sect and religion, sect and caste, sect and religion. Sect and religion. So what we can write in sect, in case of sect and religion? Sect is a homogeneous group on the basis of religiosity, but religion is a broader term which means culturally homogeneous groups. So when we say region का मीनिंग क्या होता है? एक culturally homogeneous group. For example, Maharashtra represents a culturally homogeneous group. Gujarat represents a culturally homogeneous group. Karnataka represents a culturally homogeneous group. So एक रीजन की डेफिनेशन क्या होती है कि एक कॉमन कल्चरल पैटर्न या कॉमन वे ऑफ लिविंग वहां पे हमको देखने को मिलता है. बट सेक्ट में क्या है कि कॉमनलिटी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीफ सिस्टम. ठीक है, अगेन हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं? डिफरेंट रीजन्स हैव एक्सपीरियंस्ड डोमिनेंस ऑफ डिफरेंट सेक्ट्स. कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग सेक्ट्स का डोमिनेंस देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट शक्ति सेक्ट, सो शक्ति सेक्ट या तंत्रिज्म का जो डोमिनेंस है वो हमको आसाम में ज्यादा देखने को मिलता है. देन दादूपंथ का डोमिनेंस राजस्थान में देखने को मिलता है. लिंगायत का डोमिनेंस कर्नाटका में देखने को मिलता है. सो रीजन वाइज जो सेक्ट्स का डोमिनेंस है वो बदलता है. इवन मेनी सेक्ट्स हैव क्रॉस रीजनल फॉलोइंग. ठीक है, कि अब फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म, सो बुद्धिज्म के जो फॉलोअर है, बुद्धिज्म इज अ सेक्ट. सो बुद्धिज्म के जो फॉलोअर्स है, it was actually emerged as a sect, then it institutionalized into another religion. ठीक है, so बुद्धिज्म हो गया, इस्कॉन हो गया, थेरावादा बुद्धिज्म हो गया, कि इनके जो फॉलोअर्स है दे आर नॉट जस्ट restricted up to a certain region, but across world you will find their followership. ठीक है, so in this way we can tackle this question. This is actually the most tricky question of the paper. Because if you don't have the understanding of sect and if you don't have examples, then you just cannot correlate the terms. Last question. Are tolerance, assimilation, and pluralism the key elements in the making of the Indian form of secularism? Justify your answer. It is again a 15 marker question. Ki, what is the meaning of this question statement? Ki Indian secularism. So what are the foundational principles of Indian secularism? Indian secularism is based on the ideas of tolerance, assimilation, and प्लूरलिज्म. ये हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. तो इसका अगर इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म को समझने के लिए हमको एक वेस्टर्न फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म की आइडिया होनी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज सेक्युलरिज्म का बेसिक मीनिंग क्या है? सेक्युलरिज्म मीन्स द बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्युलरिज्म इज सेपरेशन ऑफ वॉल बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन. सो वेस्टर्न सोसाइटीज में सेक्युलरिज्म का जो इमर्जेंस हुआ, it came as a reaction, it was an attempt to set the state free from the shackles of religious authoritarianism of church. कि चर्च का जो एक्सेसिव डोमिनेंस था ओवर द स्टेट सिस्टम, उसको खत्म करने के लिए सेक्युलरिज्म आया. बट इन केस ऑफ इंडियन सोसाइटी,
the emergence or the birth of secularism in Indian society was in different context. It was not the conflict between state and religion कि state and religion में religion का dominance खत्म करना है इसलिए secularism चाहिए. This was not the idea behind secularism. इंडिया में secularism के emergence के पीछे reason क्या था? The communalism, the menace of communalism, the problem of communalism, which India was experienced at the time of independence. ठीक है कि बहुत ज्यादा कम्युनलिज्म का इशू था एंड बिकॉज ऑफ दैट कम्युनलिज्म पार्टीशन हुआ. सो ये जो एनिमोसिटीज थी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज, सो उसको टैकल करने के लिए सेक्युलरिज्म इमर्ज्ड एज एन आइडियोलॉजी. ठीक है, सो इंडियन सेक्युलरिज्म वाज सीन एज एन आइडियोलॉजी which will help the state to deal with the menace of communalism and would help to provide rational basis for bringing all communities together to build national identity. So that was the purpose behind Indian secularism. Okay, so that's why the basis of Indian secularism is the traditions of India. The traditions of India like tolerance, assimilation and pluralism to hold the diversity together. Okay. So Indian society की जो requirement थी, Indian society is largely a multi-religious society. So Indian society एक इस पूरी diversity को hold करने के लिए एक ideology चाहिए. So उसी context में Indian secularism का emergence हुआ. So if we analyze the components of Indian secularism, कि जो basic idea है Indian secularism की, वो क्या है कि इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल प्रोटेक्शन फॉर ऑल रिलीजन्स. ये एक बेसिक आइडिया है. सर्वधर्म समभाव, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल प्रोटेक्शन फॉर ऑल रिलीजन. स्टेट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन और प्रोवाइड अ स्पेशल ट्रीटमेंट टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन एट द कॉस्ट ऑफ अदर. मीन्स स्टेट का कोई स्टेट रिलीजन नहीं होगा. सो ऑल दीज आइडियाज आर एक्चुअली बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ एसिमिलेशन, टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म. ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग जो एक सोसाइटी का नेचर है उसको थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं कि राइट फ्रॉम ट्रेडिशनल टाइम इंडियन सोसाइटी इज अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी. एंड यहाँ पे अगर किसी को भी रूल करना है, सो ऑब्वियसली जो लोग टॉलरेंस की पॉलिसी फॉलो करेंगे, सो दे ओनली कैन बेटर रूल हियर. ठीक है. सो आपको अशोका का पता होगा कि अशोका's पॉलिसी ऑफ धम्म वो क्या थी कि that policy was also based on the idea of toleration and pluralism. Even the Akbar's policy of Sulekul, it was also based on the idea of toleration and pluralism. Because अगर अलग अलग रीजन के लोग अगर रह रहे साथ में, सो इस पूरी डाइवर्सिटी को होल्ड करने के लिए एक आइडियोलॉजी चाहिए. ठीक है. So that's why Indian secularism is based on our traditional ideas of pluralism and assimilation and not based on western idea of neutrality. ठीक है. एंड फिर आपको वही सर्वधर्म समभाव की आइडियोलॉजी थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. You can also talk about different provisions of constitution which talk about respect for diversity, which provide each and every citizen the right to exist, to right to follow their own religion, to follow their own culture, to protect their culture. So ये सारी चीजें आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक है. एक लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि it highlights that Indian secularism is different from Western societies where secularism is based on the idea of neutrality of state towards religion. Western societies are basically mono-religious society which never faced the menace of communalism. So independence के टाइम पे इंडिया जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था, तो उसको एड्रेस करने के लिए we brought the idea of secularism which is based on the idea of tolerance and not on the idea of neutrality. ठीक है. सो टॉलरेशन, प्लूरलिज्म, इन्हीं आइडियाज को आपको थोड़ा और ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है. इन कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? एक कोई भी आप एक उसको समराइज कर सकते हो इन तीनों कंसेप्ट को, या एक आपका खुद का अगर व्यू पॉइंट है कोई, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आइदर secular or communal political parties extensively utilize the issue of religion for their narrow electoral interests and has led to failure of secularism in India up to a certain extent.
ठीक है? ऐसे एक कंक्लूजन आप लिख सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग।